Student, good morning to everyone. Welcome in your science class. So, in this video today I am going to discuss about the 6th chapter of your science book, and in the previous video we have covered half portion of this chapter up to safety rules on the road. I already completed in our previous video. Today I discuss from the electric fire. So, what is the electric fire? Switch off the main supply line, throw sand. If the electric fire is happen in our house or any other places, so first work that you should be do, that is switch off the main supply line first, then throw sand and use fire extinguisher on the fire. And if any places the fire extinguisher is not available, so then you need to collect some sand and then throw it on the electric short circuit or electric fire where this fire is happen. Never use water in case of electric fire because the water is the good conductor of electricity. जो वाटर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक वाटर जल्दी से पकड़ लेते हैं उसको. इसीलिए अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फायर होती है, शॉर्ट सर्किट होती है या तो कुछ भी होती है, तो उसमें कभी भी वाटर नहीं देना चाहिए. Never use water in case of electric fire to avoid electrical shock. We should not use wet land on electrical points and appliances. Okay. So, if anything is happen like the electric fire, so then what you doing? You first collect you first switch off the main line, then if it is not possible, then you need to collect some sand, then you throw it on the electric fire, or if the extinguisher is available in that places, so you use the fire extinguisher. Okay. Now, petrol and kerosene fire. Throw lots of sand on the fire. This will cut off the air supply and the fire will stop burning. So, we all know that the burning needs some oxygen. जब आग जलते हैं तो उसके लिए, आग की जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. So, if we try to cut off this oxygen, so in this way we can control the fire. Okay. So, that is why here is given the throw the lots of sand on the fire, because if we throw the lots of sand, so it not get the proper oxygen, so then it will be put off. Okay. Now, never throw water, as petrol is lighter than water and will float on the surface of water and keep burning. अगर पेट्रोल से कहीं पे आग लग जाए तो उसके अंदर वाटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जो होती है वो ऑयल की तरह होती है, और द ऑयल एंड द पेट्रोल इज़ वेरी लाइट इन वेट दैन द वाटर. उसका जो वॉल्यूम होता है वो वाटर से बहुत ही हल्का होती है, तो इसीलिए वो क्या होती है, अगर वाटर देते हैं तो वाटर के नीचे से जो पेट्रोल्स होती है वो अपर सरफेस में आ जाती है, फ्लोट करते हैं, और जब भी पेट्रोल ऊपर आ जाएगा तो उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी एटमॉस्फेयर से, देन द बर्निंग इज कंटिन्यू, फिर वो आग जलते रहेंगे. ओके. सो वाटर इज नेवर यूज इन द एनी केस ऑफ फायर, in case of the electric fire or the petrol or kerosene fire. Now, in case of big fires, call for the fire brigade on dial 101. That is very much important. In case of big fires, call of the fire brigade on dial 101. Okay. If the fire is not controlled by us, so we should contact with the fire brigade. We inform them and then call them to put off this fire. A fire extinguisher can be used. It
may have either a chemical or a gas which can close the fire. Okay, now next, the first aid. So up to here we are discussed so many type of accidents and the cause of the accident and how will they prevent this kind of accident. So now next I will going to discuss about the first aid. If the accident will be happen, okay, so that time what do you do? अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए? पहले जो पोर्शन हम लोगों ने पढ़े तो उसमें क्या था, एक्सीडेंट को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से ये करें कि एक्सीडेंट ना हो जाए. लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है, इफ़ द एक्सीडेंट हैपन विथ अस, सो दैट टाइम विच थिंग यू कैन डू, तब हम लोग क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट एड, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड? द इमीडिएट help given to an injured or sick person before he is taken to a doctor is known as the first aid. So if the accident happen already, then after that which treatment I will give to an injured person or needed person, so this first treatment is known as the first aid. जो पहला ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं एक्सीडेंट पर्सन को, इंजर्ड पर्सन को, जो उसको ज़रूरत होती है उस टाइम पे, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. ओके, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प प्रोवाइडेड टू अ नीडेड पर्सन. नाउ remember the following before giving the first aid. If you want to give first aid to any injured person, then some points or some rules you need to keep in your mind always. कुछ पॉइंट्स हम लोग को हमेशा अपने माइंड पे रखना चाहिए. Stay cool and calm. After accident, everybody get puzzled and they are do some wrong step. But in that time, फर्स्ट थिंग यू नीड टू कम एंड क्वाइट. उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पहले हम लोग को शांत होना पड़ेगा. देन फाइंड आउट द ग्रेविटी ऑफ इंजरी. फिर ये देखना होगा कि जो इंजरी हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो कितना बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, थोड़ा सा चोट लगा कि ज़्यादा चोट लगा. इट इज़ सीरियस, रश टू अ डॉक्टर इमीडिएटली. अगर एक्सीडेंट ज़्यादा सीरियस हुआ तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो दैट टाइम यू शुड बी कॉल अ डॉक्टर और एम्बुलेंस एंड यू नीड सम first aid that you should give the injured person, or you should take him or her to the nearby hospital for the better treatment. Be quick in giving first aid. जल्दी जल्द अगर पॉसिबल होता तो उसको फर्स्ट एड देना चाहिए. वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड. हमेशा फर्स्ट एड देने से पहले हम लोग की जो हैंड है उसको वॉश करना चाहिए. If there is need for specialized doctor or hospitalization, go for it to save their life. अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग को नियर बाय हॉस्पिटल में उसको लेके जाना चाहिए इंजर्ड पर्सन को. Do not do more than you know. अगर ज़्यादा हम लोग को जानकारी नहीं है इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ हम लोगों को नहीं करना चाहिए अपने आप. Next is the poisoning. Naphthalene balls, nail polish, detergent, etc. are poisonous if swallowed. If any children or if any persons unknowingly swallowed this kind of things, so this is very much harmful to their health. Naphthalene balls, nail polish, detergents, that all things are made up with a very chemical. So it is not good for our health. So if anyone swallowing it unknowingly, so this should be kept, it is informed to a doctor and give them a proper medicine. This should not be kept out of the reach of children. In case of poisoning, make the victim rinse his mouth and rush him to a doctor. ये हमेशा ये सारी चीज़ को बच्चे की से हाथ आसपास में नहीं रखना चाहिए, मतलब उसमें हाथ ना पहुँचे, उसको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. हमेशा उससे दूर रखना चाहिए. अगर कोई गलती से भी इसको खा लिया है, पी लिया है, तो जल्दी जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसको निकालने के लिए या तो उसके बदले में कुछ मेडिसिन देने के लिए. नेक्स्ट इज़ द नोज ब्लीड्स.
So nose bleeds are common during the hot summer days. In case of nose bleeds, अगर nose bleeds ये बहुत ही common होते हैं क्योंकि during the hot summer days the temperature is very much high and that time our body is getting dry. हम लोग की जो body होती है वो dry हो जाती है अंदर से. So that is why the someone is a very common thing. So nose bleeding in the summer season. So if it is nose bleeding, so what can you do? क्या करना चाहिए? Loosen the clothing around the neck. उसके टाइम पर अगर किसी का हो रहा है nose bleeding, तो सबसे पहले अगर उसके जो गले के समय, नेक के समय अगर टाइट कुछ कपड़ा होगा पहना हुआ, उसको हल्का करना चाहिए. Sit upright with the head held back and arms folded above the head. उसको सीधा करके बैठाना चाहिए. Sit upright with the head सर को ऊपर रखना चाहिए और पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ के रखना चाहिए हेड को, मतलब डाउनवर्ड्स में नहीं रखना चाहिए कि नाक नीचे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर करके मुंह को रखना चाहिए. एंड जो आर्म्स होती है उसको फोल्डेड करके सर के ऊपर रखना चाहिए. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विद योर फिंगर्स. अगर नोज से ब्लीडिंग हो रहा है तो फिंगर से टाइटली नोज की जो होल्स होती है उसको पकड़ के रखना चाहिए. Keep an ice pack or wet cloth on the nose and on the back of the neck. ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जैसे बताया कि गर्मी की वजह से होता है, तो अगर ऐसे होता है तो पहले तो उसका सर को ऊपर करके रखना चाहिए, पीछे की तरफ सर को रखना चाहिए कि नोज़ नीचे ना रखे, सामने ना रहे, और नोज़ की जो होल्स होती है उसको फिंगर से टाइट करके पकड़ना चाहिए. और अगर पॉसिबल होगा तो अगर आइस सामने में रहेगा या तो बर्फ़, ठंडा पानी, तो क्या होगा उससे वाटर को, उससे कोई क्लोथ को भिगा के नाक के ऊपर देना होगा. फिर शोल्डर के ऊपर, घर के नीचे, गर्दन के नीचे देने से थोड़ा सा बॉडी को ठंडा होती है, तो देन इट इज़ द ब्लीडिंग इज़ थोड़ा सा कम होने लगेगा. ओके, नाउ ब्रीथिंग थ्रू योर माउथ. उस टाइम पे नोज़ का ज़्यादा हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए. सो वी कैन ब्रीथ विथ आवर नोज़ ओनली, बट if in that cases nose is bleeding, so that time you should be take some rest with your nose and you should take breathing with your mouth that time. Okay, so breathe through your mouth. Do not blow your nose for a few hours after the bleeding stops. In case of excessive bleeding, take the help of a doctor. अगर ये सब करने के बाद भी bleeding नहीं बंद होता तो you should be contact with the doctor. Okay. Next is a fracture. So a fracture, what is the fracture? A fracture is a crack or break in a bone. After fracture, the victim is in great pain and is unable to move the broken limb. In case of a fracture, अगर फ्रैक्चर होती है, जो बोन्स होती है हम लोग की, वो टूट जाता है. ठीक है, तो अगर किसी के साथ फ्रैक्चर होता है तो उसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और जहाँ पे वो फ्रैक्चर होता है उस बॉडी पार्ट्स को हम लोग मूव नहीं कर पाते. कीप द ब्रोकन लिम्ब इन अ नेचुरल पोजीशन. जिस तरह से तुमको ब्रोकन हुआ है, अगर पैर में होता है तो पैर को हमेशा सीधा रखना चाहिए, उसको फोल्ड करना नहीं चाहिए. अगर हाथ पे हुआ है तो हाथ को सीधा रखना चाहिए, मतलब जैसी पार्ट में होगा उसको हमेशा सीधा नेचुरल पोजीशन पे रखना चाहिए, उसको ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए. Use a splint sleeve to give support of a sling to the broken leaf. पतला सा एक कपड़े से उसको बांध के रखना चाहिए कि उस सीधा रहे, उसको सपोर्ट देने के लिए. A triangular piece of cloth can be used to make a sling. मतलब स्लिंग को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर कोई पतला सा कॉटन का अगर क्लॉथ मिले तो उसको हम लोग को ट्रायंगल शेप में उसको फोल्ड करना चाहिए. फिर उसको लेके हम लोग की जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, हाथ पे हुआ कि पैर पे हुआ, उस जगह पे हल्का करके उसको बांधना चाहिए. Tie a firm bandage around the joint. Keep the bandage with cold water. फिर बैंडेज लेके, अगर बैंडेज मिलेगा तो बैंडेज लेके टाइटली इसके ऊपर बांधना चाहिए, और अगर ठंडा पानी मिलेगा तो उसके ऊपर ठंडा पानी देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो फ्रैक्चर होने के बाद वो बॉडी पर स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, तो पेन बहुत होता है, इसीलिए उसको सीधा रखना चाहिए. पहले अगर कोई कपड़ा मिला तो उसको ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करके उसके ऊपर बांधना चाहिए, और अगर बैंडेज मिला तो बहुत ही अच्छा है, बैंडेज को टाइटली बांधना चाहिए और उसके ऊपर ठंडा पानी देना चाहिए. टेक हिम टू अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस एंड ट्रीटमेंट. ये हो गया फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, लेकिन इसके बाद हम लोग को डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए बेटर ट्रीटमेंट के लिए और बेटर
मेडिसिन के लिए. ओके. नाउ next is sprain. What is the sprain? A twist in a joint such as the ankle or wrist can result in a swelling and is called a sprain. So what is the sprain? sprains किसको कहते हैं? मोच आना. जो जॉइंट होती है हम लोग की, जॉइंट कहाँ पे होती है? रिस्ट जॉइंट, लेग पे जॉइंट रहते हैं, नी में रहते हैं, लेग पे रहते हैं, एंकल में जो हम लोग की एरी होती है उस पर जॉइंट रहती है. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मोच जॉइंट पे होती है. वो कैसे? अगर हम लोग हील पहन के चल रहे तो होगा, अनइवन पाथ में चल रहे, जो रास्ता बहुत ख़राब है उसके ऊपर से हम लोग चल रहे जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा हम लोग की असावधानी से क्या होता है, हम लोग की जो एंकल्स होती है, जो एरी होती है वो मुड़ जाते हैं. और उसमें क्या होती है, हम लोग की जो जॉइंट में जो बोन रहती है वो मिसप्लेस हो जाती है. उसकी जो प्लेस होती है वो मिसप्लेस, अपनी जगह से थोड़ा हिल जाते हैं. ये फ्रैक्चर नहीं होता है लेकिन वो मिसप्लेस हो जाता है. ठीक है. तो स्प्रेन का मतलब होता है ट्विस्ट इन अ जॉइंट. तो जॉइंट होती है वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो जाती है. सच एज द एंकल और रिस्ट कैन रिजल्ट. इसके बाद क्या होती है, वो उस जगह पे हम तुरंत फूल जाती है. एबनॉर्मली वो स्वॉलोइंग हो जाता है और थोड़ा सा पेन भी होने लगता है. डू नॉट मूव द स्प्रेन जॉइंट. और उस पर उसको ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए. टाई एंड इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट. जैसे यहाँ पे दिखाया है कि ये होता है इलास्टिक बैंडेज. इसको लेके, पतला बैंडेज लेके वो उसको जॉइंट पे बांधना चाहिए. टू कीप हिम फ्रॉम मूविंग द जॉइंट, टू कीप इट फ्रॉम मूविंग. कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस. फिर हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए फर्दर एडवाइस और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए. ओके. नाउ बर्न्स फ्रॉम केमिकल्स. एक तो आग से भी हम लोग को बर्न हो सकता है, जल सकता है. दूसरी चीज़ केमिकल्स, कुछ चीज़ें जैसे कि एसिड्स और भी बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो जिससे भी हम लोग के हाथ जो है वो जल सकते हैं. ठीक है. सो यूज़, अगर ऐसे कुछ होता है तो यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया. अगर किसी भी जगह पे कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग पे एसिड गिर गया, तो ये तो कुछ गिर गए तो उसमें पहले, सबसे पहले हमको क्या, तो हाथ को बहुत जलने लगता है, तो पहले उसको वाटर से उसको वॉश अप करना चाहिए, उस जगह से उस केमिकल को क्लीन करना चाहिए. देन कवर द अफेक्टेड एरिया विथ द स्टेरिलाइज क्लॉथ और गॉज. फिर ये जो क्लॉथ बोलते, इस जो बैंडेज होती है उसको बोलते हैं स्टेरिलाइज क्लॉथ, जो पतला होती है एकदम, उससे हम लोग को उस अफेक्टेड एरिया में उसको कवर करना चाहिए. इफ़ द बर्न इज सीरियस, रश टू अ डॉक्टर. कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी अगर हम लोग के साथ इंसिडेंट अगर ज़्यादा सीरियस हो जाता है, वो हम लोग को डॉक्टर के पास जाके ठीक करना होता है. ओके. नेक्स्ट, एनिमल बाइट, इंसेक्ट बाइट. If someone is stung by a wasp or bee, remove the sting first. Sting का मतलब क्या होती है? जो बी होती है, वैप्स होती है, हनी भी होती है, उन लोगों को जो बॉडी एडेप्टेशन है, उन लोग की जो एडेप्टेशन से, इसीलिए उसका जो पीछे में अपने प्रोटेक्शन के लिए उसका पीछे में एक हुल रहती है, स्टिंग उसको कहते हैं, और उसमें एक पॉइजन्स रहती है. अगर उसको कोई भी पकड़ने चाहते तो उसको कोई चोट पहुँचाए तो वो क्या करती है, उसके ऊपर बैठा देती है और इंजेक्ट कर देती है उसकी स्टिंग को. Okay, so they can inject their sting inside the human being's skin or any other animals. Okay, then that time क्या होता है, वो बहुत हम लोग को पेन होने लगता है उसमें और वो भी फूल जाते हैं. So if someone is stung, अगर किसी के साथ ऐसे होता है तो क्या करना चाहिए? Put ice cubes on the affected area and apply some antiseptic cream. Wash the affected area with soap because it will neutralize the effect of acid stung of insect. और इसी तरह का जो भी इंसेक्ट रहती है कि हनी बी और वैप्स, इसकी स्टिंग पे जो पॉइजन रहती है उसमें एसिड रहते हैं. ठीक है. तो अगर ऐसे किसी के साथ होता है तो पहले तो ठंडा पानी देना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत जलन होती है, तो उसको जलन को बंद करने के लिए पहले हम लोग को ठंडा पानी देना चाहिए. फर्स्ट यू अप्लाई सम कोल्ड वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड देन when you are feeling some better, that time you wash off this affected area with the soap or any other liquid soap, because in the soap or liquid soap there is some base is present, some खार रहते हैं, और खर क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब उस जो स्टिंग पे जो एसिड थे उसके जो इफेक्ट है उसको ख़राब कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो, जैसे कि प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाती है,
सेम चीज़ जो स्टिंग पे जो एसिड रहती है, एसिड और सोप में जो बेस रहती है, वो बेस क्या करती है, एसिड की जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर, उसको कम कर देते हैं। ओके, इट विल बी न्यूट्रलाइज का मतलब उसका जो एसिड का जो इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, the effect on the acid stung of insect. Next is the dog bite. Dogs sometimes carry the virus of very dangerous disease called rabies. This is very important thing. So dog bite can cause which viruses, which disease? This is rabies. When such an animal bites a person, the virus entered the victim's body through the animal's saliva. If any dogs are bite on you or any person, so that time they bite, so their saliva, the dog's saliva is inject in our body. Okay, and this saliva is कैरी द रेबीज वायरसेस, इसी के थ्रू हम लोग की उसके अंदर की जो रेबीज वायरस है वो हम लोग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। सो व्हाट कैन यू डू इन दिस सिचुएशन? Wash the wound with the soap and water to wash away the germs. Then bandage with the sterilized gauze after gently rubbing the antiseptic lotion or cream on the wound. पहले उस जगह को अच्छे से धोना चाहिए, फिर इसके ऊपर कुछ एंटीसेप्टिक लोशन को लगाना चाहिए और फिर उसके ऊपर से स्टेरिलाइज क्लॉथ जो ये वाला है इससे इसको कवर करना चाहिए। एंड टेक द विक्टिम्स टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। फिर हम लोगों को एंटीवायरस की जो इंजेक्शंस होती है वो लेनी पड़ती है, उसके लिए वी शुड बी कॉन्टैक्ट विथ योर डॉक्टर। नेक्स्ट इज द स्नेक बाइट। A person bitten by a poisonous snake must be rushed to a hospital. A tight bandage can be tied around the wound to slow down the spread of poisons in the body. If any person was bitten by the poisonous snake, so the snake poisonous is spread very firstly in our body. उसके अंदर जो पॉइजन्स होती है बहुत जल्दी हम लोग की बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो इसीलिए अगर किसी को स्नेक बाइट किए हो तो जल्दी से सबसे पहले जिस जगह पे वो बाइट किए हो थोड़ा सा निशान रहेगा तो उसको तुरंत उस जगह को बांधना चाहिए टाइटली, बिकॉज इट डू नॉट स्प्रेड द पॉइजन्स इन थ्रू आवर बॉडी। ओके, इसको फैलाना नहीं चाहिए, इसीलिए तुरंत उसमें टाइटली बैंडेज बांधना चाहिए। Then remember, your immediate attention and first aid can save lives. It is important to know what to do after an accident, but it is even more important to avoid an accident. That is what safety is all about. Okay? So accident अगर हो जाता है तो उसके बाद तो हम लोग को फर्स्ट एड हमेशा देना चाहिए. That is very okay and normal things, but we need to avoid accident. That is why you should always follow safety rules or any places, anytime. If you follow the all safety rules, then you prevent accident. Okay, that is why this chapter is very much important to all of us. Or if the accident has already happened, so that time you need or you provide some first aid, and before giving the first aid you should be know about this, how to do given the first aid. Okay, so the chapter is completed. I hope these two videos related this chapter help you very a lot to understand this chapter. So thank you students, have a good day, take care of yourself, bye bye.